Hello everyone, my name is Asutosh Kumar Gupta and welcome to our official YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 6 flow of heat from class 7 or for class 7. Today, before we start, I would like to request you, please subscribe our channel, press the bell icon so that you can get notifications of new videos. Now, flow of heat. What is the heat? First of all, what is heat? Heat is the heat, हिंदी में इसे ऊर्जा कहते हैं. Heat is the form of energy which make our food simply, or which can be measured on temperature scale as well as Kelvin scale. Okay, it is a form of energy. Next is flow of heat means what? Flow means transfer, something which is taken from one place to another place. That is known as flow. It is by natural process or any other means of. So flow of heat is mean that transfer of heat from one place to another place, one into another thing. So now how this flow of heat can occur? And there are three ways by which the process of flow of heat can be done. That is, first one is conduction, convection and radiation. What is conduction, convection and radiation? These are three methods of flow of transfer, transfer of heat. Okay, conduction, convection and radiation. Now let us take an example of your daily life. सपोज तुम्हें जो है एक बुक को अपने फ्रेंड जो कि तुमसे दूर बैठा हुआ है तुम्हारे क्लासरूम में, उसको ट्रांसफर करना, तो उसके लिए तीन मेथड तुम्हारे पास है. एक तरीका क्या होगा? पहले तरीके में आप क्या करोगे कि अपने पड़ोस में बैठे हुए स्टूडेंट को वो बुक पास करोगे और उससे कहोगे कि वो दूसरे को ट्रांसफर करे. इस तरीके से वो उस तुम्हारे मित्र तक जिसको वो बुक रिक्वायर्ड थी या जिसको वो बुक चाहिए थी, वो बुक पहुंच जाएगी. एक तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका क्या है? कन्वेक्शन. इसमें क्या करोगे कि तुम खुद जाओगे, उस बुक को लोगे और उठ करके अपनी जगह से उस जो दूर बैठा तुम्हारा मित्र था उसको दे करके आओगे. ये दूसरा मेथड क्या हो गया? कन्वेक्शन का. और तीसरा मेथड क्या है? रेडिएशन. तुम इजीली उस बुक को थ्रो करोगे और वो तुम्हारा फ्रेंड जो है जिसको वो बुक चाहिए थी वो उसको कैच कर लेगा. ये तीन मेथड होते हैं तुम्हें उस बुक को ट्रांसफर करने में. हालांकि तीसरा मेथड अप्लाई नहीं करना है, बुक उसमें फट सकती है. ओके, सो बी केयरफुल. सो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, देयर आर थ्री मेथड ऑफ फ्लो ऑफ heat. In first method, conduction of heat, let us take an example of a rod. It is a metallic rod. We are start heating up from 1 end and hold it from second end with our hands. After some time, when it is heated, we find that it is not comfortable to hold this. ये इतना आसान नहीं है कि इसको हम आसानी से होल्ड कर सके. क्यों? ये इतना गर्म हो चुका होता है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम हीट दे रहे थे और वो ट्रांसफर होते होते यहाँ तक पहुंच गई. इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये है कि ये हीट इसमें ट्रांसफर हुई. कैसे? जब हमने यहाँ पे इसको गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म करने से क्या हुआ? यहाँ पे हीट देने से क्या हुआ? इसके मॉलिक्यूल जो यहाँ पर, इस रॉड के मॉलिक्यूल जो यहाँ पर मौजूद थे, उनको हीट एनर्जी मिली, उनको डायरेक्टली हीट एनर्जी गेट हुई. अब वो क्या करेंगे? वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं. अब चूंकि देयर आर अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दैट मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद ईच नेबरिंग मॉलिक्यूल्स. और जब वो टकराएगा तो वो हीट एनर्जी जो थी, जो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिली थी, वो दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हुई. वो भी स्टार्ट कर दिया वाइब्रेट करना. इसी तरीके से धीरे धीरे वो वाइब्रेशन के थ्रू वो एनर्जी कहाँ तक पहुंच गई? उसके उस एंड तक पहुंच गई जहां से हमने उसे होल्ड किया हुआ था. और ये क्या कहा जाता है? कंडक्शन ऑफ हीट. Okay, this whole process is known as, in which
molecules are transferring heat to its neighboring molecule, this process is known as transfer of conduction of heat. Now there are many materials which can transfer in this way heat energy, and some material cannot do that. They will burn up here but do not transfer the energy at this end. Okay, if there is other material than metal. Okay, so there are two materials according to this. Every material which conducts electricity, which transfers, which help this conduction of electricity are known as conductor of heat. क्या कहे जाते हैं वो? conductors of heat. And second one, दूसरा क्या है? Insulators of heat or bad conductors of heat. Insulators or bad conductors. What does it mean? Conductors means जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने में हेल्प करें, उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर्स. लाइक ऑल द मेटालिक मटेरियल्स. एंड इंसुलेटर्स लाइक ऑल द लिक्विड विच दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हीट एनर्जी. They can never be conduct heat energy. They can transfer heat energy, but they cannot conduct heat energy. And gases. All the gases are the insulators or bad conductor of heat energy, heat transfer. In case of liquids, only one liquid is there, which is mercury, which in liquid state transfers the heat energy from one place to another by method of conduction. Okay, I think conduction method is clear. What is conduction? If we give the heat energy at one end and it transferred by vibration of molecules to the other end, this method is known as conduction. And on the basis of this, there are two types of material. One is conductors and other is insulators. Conductors are those material which conduct heat transfer, and insulators are those materials which do not easily transfer the heat energy by conduction method. Okay, I think it is clear to all. Now convection. What is convection? I want to rough this, so please note it down or take the screenshot. Okay. Now our second method is convection. हमने बुक ट्रांसफर वाले में बुक ट्रांसफर करने के लिए सेकंड मेथड क्या बताया था कि खुद बुक लेकर के जाएं और उसे दूसरी जगह पे जिसको रिक्वायर्ड थी हमारे मित्र को उसको दे करके आ जाए. मतलब कन्वेक्शन में क्या होगा, जो मटेरियल है, जो मीडियम है, उसमें उसको खुद जाना पड़ेगा, उसके मॉलिक्यूल्स को खुद जाना पड़ेगा हीट को ट्रांसफर करने के लिए. अब इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर हम एक बीकर लें और इसमें वाटर डालें और इसमें एक आइस क्यूब इसके अंदर डाल दें और इसे गर्म करना शुरू कर दें, पाएंगे कि ये आइस क्यूब जो है वो बहुत जल्दी ही क्या हो रहा है? पिघलने लग रहा है. ये क्या मेल्ट हो रहा है. क्यों मेल्ट हो रहा है? इसके नीचे से हमने इसे हीट दे दी और ये क्या हो जाएगा? मेल्ट होने लगेगा. तो मेल्ट होने से इस पर क्या होगा? क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर के जो जस्ट यहाँ का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, वो हीट गेट करता है और वो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी उसकी, दिस हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल वांट्स टू गो अप. This molecule wants to go up, so it start moving to upward, and that will come to here. The cold water comes to here. In this way, the whole water will be hot, become the hot. So convection is
द एनर्जी, यहाँ पे जो हम एनर्जी दे रहे हैं मॉलिक्यूल ले रहा है और लेकर के हट जा रहा है वहां से, दूसरा आ रहा है, दूसरा लेकर के वो भी हट जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, ये भी हीट ट्रांसफर है, लेकिन इसमें क्या है, 1 by 1 हीट एनर्जी को गेट कर रहा है। या वही मेथड है जो हमने बताया क्या कि अगर हमें बुक देनी है दूसरे को तो वो हम उठ करके खुद ही उसके पास तक जाएंगे और दे करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेक्शन। अब इसका कन्वेक्शन का यूज क्या है? कन्वेक्शन से हमारे जो सी ब्रिजेस हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और एंड लैंड ब्रिज। ब्रीज मीन्स क्या होता है? हवा। जो कोस्टल एरियाज में हवाएं चलती हैं, जो सी की तरफ चलती है या लैंड की तरफ चलती है, वो वाटर की क्वालिटी एक होती है। ये वाटर एक लिक्विड जो है उसकी क्वालिटी ये होती है, बहुत जल्दी गर्म नहीं होता और बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता। ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज में जो लैंड और सी के बीच का इंटरकनेक्शन होता है उसमें ये वर्क करता है। लैंड, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज क्या है? सी ब्रिज में फर्स्ट थिंग अगर हम दिन के टाइम पे कोस्टल एरियाज में दिन के टाइम पे देखेंगे तो वाटर के ऊपर का टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म हो रहा है और लैंड के ऊपर का टेम्परेचर जल्दी गर्म हो रहा है। तो लैंड के ऊपर का टेम्परेचर जल्दी गर्म होने की वजह से वहां की एयर जल्दी गर्म हो जाती है। एयर जल्दी गर्म होने की वजह से लैंड से जो एयर गर्म हो रही है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, वो राइजेज अप हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्लेस वैकेंट हो जाती है। और इस प्लेस को भरने के लिए सी के ऊपर, सी लेवल के ऊपर जो एयर है वो इधर की तरफ आना शुरू हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज। इसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज, जो कि लैंड की तरफ आ रही है। ड्यूरिंग डे टाइम सी ब्रीज। नाउ लैंड ब्रीज क्या होती है? रात के समय में चूंकि जल्दी ठंडा, लैंड क्या है, जल्दी ठंडी हो जाएगी और वाटर जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो वाटर के ऊपर की एयर जो है वो हीट अप है, वो राइज करेगी और उसकी जगह लेने के लिए लैंड की तरफ से ब्रीज या एयर रस करेगी कि वहां पर पहुंचेगा। तो इसे क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज। ओके, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। आई थिंक इट इज, व्हाट इज सी ब्रीज? ड्यूरिंग डे टाइम the temperature of air at over the land region is high, due to which it rises up, and to cover its vacant place from the sea level, the air rushes to come here. That is known as sea breeze. And land breeze, in night time the temperature on sea level is high, and that's why the air on over above the sea level rises up, and to take that vacant place from the land region, the air rushes towards the sea, and that is known as land breeze. And these both do what? To maintain the temperature over the land region as well as the sea level. Okay. Now third one is radiation. These two methods require somehow mediums. These two methods require somehow mediums. This doesn't require any medium. This require what? This do not require any medium. And this is the fastest way to transfer the heat energy from one place to another place. These both the methods are required a medium by which it can transfer the heat energy, but radiation is the method in which no need of energy and no need of medium is required. Now heat energy which is transferred to by this method is known as radiant energy. And of course this radiation is obviously this radiation is the main source of energy, because we all get the energy
in any manner, the energy is related to sun's energy, and sun's energy comes to earth with radiation method. About this I will discuss in next video. Before that, conduction and convection are two methods which you have to read out. Okay, with this, thank you, have a nice day, and please subscribe the channel. Okay, bye.